Good morning to all. I am Dr. Suman Rajput, Faculty of Physics in High-Tech Institute of Engineering and Technology, Ghaziabad. Today I will discuss about the wave motion. First of all, I will tell you about the wave. What is wave? You know, wave is a type of disturbance that carries energy and momentum with us without the actual movement of particle. Okay, thus it is a disturbance that carries energy and momentum with us without the actual displacement of particle from one place to another place. Thus, wave motion is created due to the repeated periodic variation of particles about their mean position. Just for example, this is a symbol of wave. Yes, this is the direction of propagation of wave, which is positive x direction, and this is the direction of displacement. Here we have shown a wave. This is the mean position. This is the mean position, and this is the direction of propagation of wave. Wave is propagating in this direction while the particles of the medium are vibrating along this direction. Okay, this is the direction of vibration of particles. Means particles are moving up and down to their mean position while wave is moving along the x-axis. Thus, wave is moving along this direction and particles are vibrating about their mean position. Means particles are not actually leaving their place. Particles are not actually leaving their place. They remain at the same place and do periodic motion about their mean position. Okay. Now, there are so many types of wave, just like mechanical wave, or these are also called as elastic waves, non-mechanical waves, or electromagnetic waves. And besides this, there are so many waves like de Broglie waves, matter waves, etc. Here we will discuss about the mechanical wave. Okay, what is mechanical wave? Mechanical wave, the wave which require a material medium for their propagation is called mechanical wave. इसको हिंदी में यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं. इनके लिए माध्यम का होना जरूरी होता है. बेसिकली मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल longitudinal wave and second one is the transverse wave. Means mechanical wave two types की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव. अब आप देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती हैं जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव. एंड ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती हैं जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं अलोंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. दस longitudinal wave, in this particles of the medium vibrate in the same direction of propagation of wave, while transverse wave are those in which particles of the medium vibrate along perpendicular to the direction of wave propagation. Okay, second one difference in between them is these waves, longitudinal waves, are possible in all mediums like solids, liquids and gases, while transverse wave are possible only in solids and on the surface of liquid. Means for these waves the medium should be rigid होना चाहिए. Okay, next one is the these waves travels in the form of compression and rarefaction. These waves travels in the form of compression and rarefaction. आगे मैं आपको बताऊंगी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते क्या हैं. और यहाँ पर जो वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स वेव वो ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट और ट्रफ. ओके, नेक्स्ट वन, इसका एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का, जैसे कि साउंड वेव हो गया, अल्ट्रासाउंड वेव हो गया, सीस्मिक पी वेव्स जो कि जनरेट होती हैं जब एक्सप्लोजन होता है या फिर अर्थक्वेक वगैरह आता है, तब ये सीस्मिक प्राइमरी वेव्स जनरेट होती हैं. ये एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का. दीज वेव्स इन प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग. स्प्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं. जैसे कि आपने एक स्प्रिंग को लिया, किसी बेस पर आपने उसको रखा, उसको आपने एक साइड से फिक्स कर दिया, दूसरी साइड से जब उसको आप क्या करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, तो वो क्या करता है, अपने मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे क्या करता है, वो मोशन करना स्टार्ट कर देता है. तो इस तरह की जो वेव्स होती हैं वो वेव्स कहलाती हैं वेव्स इन अ स्प्रिंग. तो ये भी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का ही एक एग्जांपल होता है. अल्ट्रासाउंड वेव्स, और इसके एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जैसे कि आपकी लाइट वेव्स हो गई, प्रकाश की किरणें हो गई, तरंगे हो गई, एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, ये सारी की सारी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो ट्रांसवर्स वेव के अंतर्गत आती हैं। इनको आप हिंदी में अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं और इनको हिंदी में कहते हैं आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को अनुदैर्ध्य तरंगे। ओके नाउ, तो आपका यहाँ देखिए बेसिकली यहाँ पर हम लाइट वेव्स को डिस्कस करेंगे आगे चल के, और यहाँ पर हम साउंड वेव्स को डिस्कस करेंगे। आप एक बार इनका डायग्राम देख लीजिए। मैंने जो अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बताई है उसके एग्जाम्पल है मोशन इन अ ट्यूनिक फॉर्क, वाइब्रेशन होती ना ट्यूनिंग फॉर्क। तो आप देखिए यहाँ पर एक मैंने ट्यूनिक फॉर्क बना रखा है, उससे जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं, साउंड जनरेट हो रही है, वो आपको इसके थ्रू दिखाया गया है। दैट इज ये जो आपका दिखा रखा है यहाँ पर वेव्स जो है पास पास है। दिस इज द रीजन ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन यहाँ पर प्रेशर और डेंसिटी यानी कि दाब और जो घनत्व होता है एयर का वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है, इस कारण से वो बहुत पास पास है। तो ये हाई प्रेशर और डेंसिटी वाला रीजन होता है कंप्रेशन। और दूसरा आपका रीजन है यहाँ पर क्या है, वेव्स जो है दूर दूर दिखा रखी हैं, रेयर है, तो ये कहलाता है रेयरफेक्शन। क्या कहलाता है ये, रेयरफेक्शन। तो यहाँ पर कंप्रेशन में क्या होता है, डेंसिटी और प्रेशर दोनों ज्यादा होते हैं, और रेयरफेक्शन में क्या होता है, डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही क्या होते हैं, इसके रेस्पेक्ट में थोड़े कम होते हैं। तो यहाँ पर जो ट्यूनिंग फॉर्क से जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं उससे क्या होता है, सक्सेसिव कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, इस तरह से हमें मिलते हैं। तो ये आपकी देखिए इस तरह से वेव जो होती है, वेव इस तरह से क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये तो डायरेक्शन है वेव के प्रोपोगेशन की। और इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो अपने ही प्लेस पर, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन में ही क्या कर रहे हैं, मूवमेंट मतलब मोशन कर रहे हैं। वो अपनी प्लेस छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, अपने ही प्लेस पर क्या कर रहे हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं आगे पीछे। और कुछ टाइम बाद जब वो साउंड बंद हो जाती है तो वो अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। मींस पार्टिकल्स यहाँ भी लीव नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन वो वेव की डायरेक्शन में, वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में ही क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो इस तरह का जो मोशन कहलाता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंतर्गत आता है, जो कि जिसमें कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ओके, तो यहाँ आप देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन, आप कह सकते हो दो लगातार कंप्रेशन के बीच की या दो लगातार रेयरफेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द वेव। दो आप बात कर रहे हैं किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो यहां पर दो लगातार कंप्रेशन या फिर दो लगातार रेयरफेक्शन, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। क्लियर। तो आप देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या प्रोड्यूस होती हैं, वहां पर प्रोड्यूस होती हैं आपके कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसवर्स वेव। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया कि लाइट होता है, लाइट वेव बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर साउंड वेव जो हमें आगे डिस्कस करना है। तो लाइट वेव क्या होती है, ये एक वेव मोशन इन ट्रांसवर्स। ये किसका है, ये लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल है, और ये किसका है, ट्रांसवर्स का। तो यहाँ पर आपको देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होते हैं, क्रस्ट। ये जो है आपका पॉइंट, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, और ये वाला जो पॉइंट्स होता है ये कहलाता है ट्रफ। क्लियर। तो क्रस्ट क्या होता है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दीज आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जस्ट फॉर एग्जांपल ये भी आपका हो गया क्रस्ट, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ये किसका एग्जांपल है, ट्रांसवर्स वेव का। क्लियर। और ये एग्जाम्पल था आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का। किसका एग्जाम्पल था ये, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके। तो इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्रस्ट एंड ट्रफ आर प्रोड्यूस्ड। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive क्रस्ट और टू consecutive ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। दो लगातार क्रस्ट
और दो लगातार ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर दो लगातार कंप्रेशन और दो लगातार रेयरफेक्शन के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। एंड हियर द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive crust or two consecutive trough is known as wavelength. Okay, this is the mean position and this is also the direction of propagation of wave and this is the displacement. This is the direction of displacement. मीन पोजीशन के अप एंड डाउन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जो मीन पोजीशन के अप में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो पॉइंट है, वो पोजीशन है क्रस्ट की, और मीन पोजीशन से नीचे की तरफ जो आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डायरेक्शन है किसकी, वो पॉइंट है आपका ट्रफ का। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ I will discuss you about the difference between sound wave and light wave. It is clear? Yes. साउंड वेव और लाइट वेव के बीच में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा वेव के बारे में, वेव मोशन के बारे में, ठीक है। फिर वेव मोशन में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव आपको बताई। यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है अबाउट मैकेनिकल वेव। मैंने आपको अभी बताया जैसे कि मैकेनिकल वेव दो टाइप की होती है, एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें आपका मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती हैं जिसमें मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अलोंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, जो मेन एग्जांपल है इसका साउंड वेव, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, और इसका एग्जांपल है आपका लाइट वेव। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द साउंड वेव एंड लाइट वेव। तो बेसिकली आपको अभी मैंने साउंड वेव के बारे में बताया। तो साउंड वेव क्या है, सबसे पहले देखिए साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव है, ठीक है। और जो लाइट वेव है वो कैसी वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, ठीक है, और लाइट वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव भी है, ठीक है। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में उतना डिटेल में नहीं बताया। तो पहले आप देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो वेव होती हैं जो जिनको मूवमेंट के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैंने आपको यहां बताया था इलास्टिक वेव या मैकेनिकल वेव, दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि नॉन मैकेनिकल वेव्स में आती हैं। तो देयर इज नो नीड ऑफ मटेरियल मीडियम for their propagation. These waves are called electromagnetic wave. इनको मूवमेंट के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं लाइट वेव्स, सनलाइट जो आती है सूरज से पृथ्वी तक, वो कैसे आती है, वो बिना किसी मीडियम के आती है, ठीक है। मीडियम नहीं होता तब भी सनलाइट आ जाती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, दीज आर दोज वेव्स which do not require any material medium for their propagation। और लाइट वेव जो होती है एक ट्रांसवर्स वेव भी होती है, और लाइट वेव जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है, और एक ट्रांसवर्स वेव भी होती है। उसमें किसी मीडियम की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अप एंड डाउन यानी कि उसके परपेंडिकुलर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो साउंड वेव होती हैं वो रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, व्हाइल लाइट वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। नेक्स्ट वन इज साउंड वेव इज मैकेनिकल वेव, और लाइट वेव्स कैसी होती हैं, लाइट वेव्स कैसी होती हैं, वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। साथ साथ ट्रांसवर्स वेव भी होती हैं। कैसी होती है, ट्रांसवर्स भी होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए क्योंकि उनको मूवमेंट के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट वन इज साउंड वेव कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, मैंने अभी बताया था, और ये कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल में मतलब मैंने बताया था पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि वेव की दिशा में ही क्या करते हैं, वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम का। जबकि ट्रांसवर्स वेव में वेव की परपेंडिकुलर मीडियम पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, velocity of sound in air that is equal to approximately 340 मीटर पर सेकेंड, जो लगभग 340 मीटर पर सेकेंड होती है। जबकि velocity of light in air is approximately 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेरी हाई स्पीड। लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लगभग वो 8 मिनट में सूरज से क्या करती है, पृथ्वी पर आ जाती है,
ठीक है। तो लाइट जो होती है बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करती है, उसके कंपैरिजन में जो साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकंड वो बहुत कम होती है। तो ये हाई स्पीड में काम करती हैं और ये कैसे होती हैं, थोड़ा उनके रेस्पेक्टिवली लो स्पीड में काम करती हैं। नाउ दीज वेव्स आर पॉसिबल इन ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं यानी कि साउंड वेव, हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो सारे टाइप के मीडियम जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस, सब में पॉसिबल होती हैं। जबकि जो आपकी लाइट वेव्स होती हैं दीज आर पॉसिबल ओनली इन सॉलिड्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। या तो वो सॉलिड्स में पॉसिबल है या फिर लिक्विड की सरफेस पर, ठीक है, क्योंकि लिक्विड की सरफेस भी क्या करती है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, मतलब एक वो सॉलिड की तरह से बिहेव करती है। नाउ साउंड वेव्स आर, जो साउंड वेव्स होती हैं उसमें प्रेशर, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रेशर P एंड दिस इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी रो। तो साउंड वेव्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये कंप्रेशन जो होता है वो हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी वाला रीजन है, और रेयरफेक्शन लो प्रेशर और लो डेंसिटी वाला रीजन है। तो यहाँ पर जो होता है साउंड वेव में प्रेशर और डेंसिटी जो होता है वो चेंज होती है ड्यूरिंग प्रोपगेशन। वो प्रोपगेशन के दौरान क्या होता है, प्रेशर भी, दबाव भी और डेंसिटी यानी घनत्व भी, दोनों के दोनों क्या करते हैं, वो चेंज होते हैं। जबकि लाइट वेव्स में क्या होता है, प्रेशर और डेंसिटी चेंज नहीं होते। ओके, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो साउंड वेव्स हैं वो लाइट वेव से बिल्कुल क्या करती हैं, डिफर करती हैं कई मायनों में। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेव मोशन। ओके, इज इट क्लियर? Related to wave motion. ठीक है, ओके। फर्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जनरली वाई। इट इज रिप्रेजेंटेड जनरली बाय वाई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहां पर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो मैं आपको अभी यहां से बता देती हूं कि this is the position of particle at any instant from the mean position. Means displacement is the position of particle at any instant from the mean position. इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा आपका position of particle from mean position. Mean position at any instant of टाइम। मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल कहां पर लोकेट है। मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है, ओके, ये पार्टिकल की पोजीशन है जो मैंने डॉट लगाया है। तो मीन पोजीशन आपकी ये है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी, मान लीजिए ये क्या है, ए बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी, यानी कि ए बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके वाई के। तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल मान लीजिए यहां पर है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए मीन पोजीशन पर, तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो ये आपका किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पार्टिकल की पोजीशन को शो करता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई एंड इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या कहलाएगी, या तो देखो मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यूनिट इसकी वही होगी जो कि लेंथ की होती है। सेकंड वन इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए और स्मॉल ए। कुछ बुक्स में ये कैपिटल ए से मिलेगा, कुछ बुक्स में ये स्मॉल ए से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट था, तो यहां लिखेंगे आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्या कहलाएगा ये, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पार्टिकल। ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, यहां देखिए आप डायग्राम में, यहां पर आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा, ये दिस वन, इसको मैंने स्मॉल ए से लिख दिया है, तो ये हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड। ऐसे ही नीचे भी आप देखिए, नीचे आपका जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या है, वो आपका है दिस वन, तो ये हो गया आपका
ए, तो ये आपका हो गया मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड। ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है क्या है ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको जो क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं वो आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट पर ही मिलेंगे। ओके, तो आपको यहां पर इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हमने क्या किया ए से या रिप्रेजेंट किया आपने, तो आप इसको सी डी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको सी डी। तो यहां पर आप कह सकते हो सी डी इज इक्वल टू स्मॉल ए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड। और इसकी यूनिट भी क्या होगी, इसको भी हम किस में नापेंगे, इसको भी हम मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में, इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट जो होता है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि आपका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज ये कैसा है, ये एक स्केलर है। ओके, ये कैसी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसी है, डिस्प्लेसमेंट एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर, दोनों हैं लेंथ ही। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपका आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। क्या होता है ये, टाइम टू कंप्लीट, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूं उसको, वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन, या फिर इसको कह सकते हो वन वाइब्रेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, अबाउट देयर मीन पोजीशन। ओके, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन अबाउट द मीन पोजीशन। अब आप यहां पर बात कीजिए, तो यहां पर आप ओ से स्टार्ट किया आपने चलना, ओ से गए आप यहां तक गए, यहां तक गए और यहां आए और यहां, एक पूरा कंप्लीट साइकिल हो गया। ओ से लेकर के मान लीजिए ये आपका एल है, ओ से एल तक आपका एक कंप्लीट साइकिल हो गया। ठीक है, तो ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल हो गया। या फिर आप कह सकते हैं आप यहां से स्टार्ट किया आपने, यहां गए, ठीक है, यहां आए, कहां तक हो जाएगा बताइए, यहां तक, सी यहां से स्टार्ट किया, यहां गए, यहां आ गए, तो एक कंप्लीट साइकिल हो गया। मींस आपको एक पूरा कंप्लीट साइकिल देखना है, उस साइकिल में जितना टाइम लगता है, एक पूरा रोटेशन में जितना टाइम लगता है वो टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। आप समझ सकते हैं इसको, यहां से आपने एल से स्टार्ट किया, आप ऊपर गए, फिर मीन पोजीशन पर आए, फिर आप नीचे गए ट्रफ की पोजीशन पर, ठीक है, फिर आप यहां आ गए। तो दो आप कह सकते हो दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, एक पूरे टाइम पीरियड को कवर कर रहा है। तो यहां पर आप कह सकते हैं टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन इज अबाउट द मीन पोजीशन इज नोन एज टाइम पीरियड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। तो आप कह सकते हो टी जो होता है उसको, टी क्या होता है इसकी यूनिट ऑफ टी, यूनिट किस में नापेंगे इसको हम, यूनिट ऑफ टी इज क्या होगा ये सेकंड, इसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। क्लियर, यूनिट ऑफ टी इज सेकंड। नेक्स्ट वन डेफिनेशन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप एन और न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स में ये एफ से भी रिप्रेजेंट होती है। तो आप देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होगा, फ्रीक्वेंसी आपका न्यू और एन से रिप्रेजेंट होगी। तो दोनों टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों रिलेटेड होते हैं। टाइम पीरियड है एक पूरा ऑसिलेशन या वाइब्रेशन पूरा होने का टाइम, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक वाइब्रेशन में नंबर ऑफ जितना टाइम लगता है, एक पूरा वाइब्रेशन होने में जितना टाइम लगा वो हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको हम एन या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेकंड में कोई पार्टिकल कितनी बार वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस, ठीक है, और ऑसिलेशंस इन
1 सेकेंड या पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं, तो इसको आप n और न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n जो होता है, n होता है t से इस तरह से रिलेट होता है कि n बराबर होता है 1/t, यानी कि t की वैल्यू अगर हम 1 सेकेंड रख देते हैं, यहाँ देखिए इफ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इफ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू जो होगी 1 हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन होंगे या जितने वाइब्रेशन होंगे वो कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि n, आवृत्ति। इसको बोलते हैं हिंदी में आवृत्ति, और इसको बोलते हैं टाइम पीरियड को आवर्तकाल। क्लियर? तो इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या होगा, पर सेकेंड। क्या लिखेंगे इसको, पर सेकंड। देखो n की वैल्यू 1/t है, तो ये क्या हो गई, ये पर सेकंड हो गई, या फिर इसको हम कहते हैं हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द वेवलेंथ। नेक्स्ट वन इज वेवलेंथ। वेवलेंथ 5th टर्म है आपकी यहाँ पर, वेवलेंथ। बेटा नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है वेव की लेंथ, एक वेव की लेंथ है। तो वेवलेंथ को जनरली हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी एक लेंथ ही है, नाम से पता लग रहा है, दिस इज ऑल्सो अ लेंथ। तो वेवलेंथ क्या है, यहां से आप देखिए कि एक पूरा ऑसिलेशन होने में या एक पूरा वाइब्रेशन होने में जितना टाइम लग रहा है वो उसका टाइम पीरियड हो गया। 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन हो रहे हैं वो हो गया उसकी फ्रीक्वेंसी। और जो वेवलेंथ आएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव या 2 सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ, या कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, या फिर आप कह सकते हो ये, इसको हम कह सकते हैं डिस्टेंस। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव, ठीक है, distance between 2 successive position of particle in the same phase, distance between 2 successive vibrating particle in the distance between 2 successive vibrating particles in the same phase is known as wavelength। ठीक है, वेवलेंथ की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, आप यहां पर इसको जनरल समझ सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन द सेम फेज। फेज भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो देखिए ये जब पार्टिकल सी पॉइंट पर है, तो ये फिर ये यहां पर है, ये क्रस्ट वाला पॉइंट है, तो ये दोनों एक ही फेज में है। ठीक है, उनका एंगल जो है वो सेम है। इसी तरह से ये वाला जो पार्टिकल है ट्रफ वाला, ये जो पॉइंट है ट्रफ का, TROUGH, और ये वाला जो ट्रफ है, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम फेज में है। तो आप कह सकते हो जनरल डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पार्टिकल्स, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन द सेम फेज इज नोन एज वेवलेंथ। अब जब आप बात करेंगे किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो आप इसकी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कंप्रेशन और 2 सक्सेसिव रेयरफेक्शन इज नोन एज वेवलेंथ। आप देख सकते हैं 2 लगातार कंप्रेशन या 2 लगातार रेयरफेक्शन के बीच की डिस्टेंस भी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। और जब आप बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की, तो वहां पर आप कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज ऑल्सो नोन एज वेवलेंथ। 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के या 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। तो ये एक वेव की, कंप्लीट वेव की लेंथ होती है, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट भी क्या होती है, इसकी यूनिट भी होती है आपकी मीटर, सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी हो सकती है, जो कि लेंथ की यूनिट्स होती हैं। क्लियर? अब आता है आपका वेव वेलोसिटी। नेक्स्ट वन इज द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, ठीक है, वेव वेलोसिटी, इसके नाम से पता लग रहा है कि एक वेव की वेलोसिटी होती है कि कोई पार्टिकल, आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वेव की जो वेलोसिटी होती है वो v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट
1 oscillation या 1 vibration. Clear? Time taken to complete 1 oscillation या 1 vibration. तो आप इसको कह सकते हैं displacement of the particle in 1 complete oscillation. आप देखिए 1 complete oscillation में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होती है, उसकी वेवलेंथ होती है, मैंने अभी आपको बताया था. तो यू कैन राइट इट लैम्डा, और टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन और 1 वाइब्रेशन वो कहलाता है आपका टाइम पीरियड t. तो v इज इक्वल टू हो गया आपका लैम्डा अपॉन t. अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो रिलेशन है वो क्या था, n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. अभी मैंने आपको बताया ऑलरेडी यहाँ पर कि n इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टी होता है. तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टी को एमडा लिख सकते हैं. तो वी कैन राइट इट v इज इक्वल टू एन लैम्डा हियर, चूंकि n की वैल्यू 1 अपॉन टी है. तो ये वेवलेंथ और आपका वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी में रिलेशन हो गया v इज इक्वल टू. नाउ I will end this here. Now in the next lecture I will discuss you about the wave motions numericals. Okay, thank you everyone. Thank you.